first of all, you can write a google.com. So you can open a Google page. Everyone know about that. Google is the very most famous browser. So you should open a Google Scholar. Now your area and domain for searching is changed. Now you can open a Google Scholar, where you where googlescholar.com is a site where maximum Google citation can be done on it. Right. So you should write about your area of interest. For example, if you would like about a data warehouse mining, data warehouse and mining. So you can see there is anyone who has been writing a paper. The list is open in the front of you. Fine. So the next step is you want a particular range. Anytime that should be displayed on your screen. You find there is a 1,33,000 results shown on your screen. So you should set up a range. आपको last you should find only last 2 years paper. Fine. That's it. Fine. So you should search last 2 years paper. So this is open in the front of you. How many people are cited that is mentioned here? The related articles, versions, if you finding. So you need some area like a healthcare में आपने काम करना है. You should put up a healthcare. Fine. So आपने किस चीज में research करनी है? That's most important part. So first of all, you find if you need a 2021 only, you should write only 2021 कि current किस area में research हो रही है. So सबसे पहले जो highest होगा related article that should be open on the front of you. So कितने आ चुके हैं data warehouse models पे काम हो रहा है या there is another field that you have to find out. Fine. So you should mention specific relevant dates. किस डेट के बीच में हो, you should also mention that thing. You need abstract, you can click here कि abstracts we want to see. Fine. So in case अगर आप इसमें से suppose करो आप agriculture storage infrastructure कैसे है, you can search that particular area. तो आप उस हिसाब से उसके ऊपर click कर सकते हैं. ठीक है. So whenever we are click, so you need everything you can click here कि मुझे हर तरह का I need it. Fine. So you should click like a economic network resilience of Gyeonzong Plain City Cluster China. उसका पेपर सबसे आगे. So how many people are cited? That is also mentioned here. Fine. So आप इसमें से कोई एक पेपर हम temporary करते हैं click. So you can see business intelligence information in the world under control. So मैंने वो article पे click किया. So you are finding कि ये article download के लिए जाएगा because it's a PDF file. तो बेसिकली we need a PDF files. ठीक है. So अगर मैं इसको आगे साइड करना चाहता हूँ, you can see this is all that can be open. So इसमें से कौन सा मैं ओपन करके देखना चाहता हूँ. Suppose I will click on this one. So it will start searching और वो मेरे सामने आर्टिकल ओपन हो जाएगा. So here it is mentioned कि ये किस पर्सन ने लिखा है, the name of the person, the journal name, किस जर्नल में छपा है, किस ईयर में छपा है और कौन सी उनकी वेबसाइट ऑफिशियली. सो ये 3 फैक्टर्स होते हैं जब हम कोई रिसर्च, कोई सर्च एरिया या कोई स्पेसिफिक एरिया या डोमेन के अंदर हम काम करने जाते हैं. फाइन. सो इफ यू वांट कि मैं किसी और पे सर्च करना है, सपोज यू वांट कि मैं वेब 3.0 के ऊपर काम करना है, सो इट विल सर्च वेब 3.0. तो आप वो वेब 3.0 को वेब स्कॉलर ढूंढना चले जाएगा. फाइन. अब इसमें सपोज कीजिए ये मैं अभी इस पे कोई डेट टाइम की कंस्ट्रेंट ना लगा के, सपोज करो मैं इस पे क्लिक करता हूँ सपोज वेब 3.0 पे, तो ये ओपन हो जाएगा मेरे सामने पीडीएफ फाइल. इट विल टेक सम टाइम. अब वो कह रहा है कि ये साइट्स पे रॉन्ग है, मतलब ये साइट पे ये पेपर अवेलेबल नहीं है. ठीक है. अब हम किसी और साइट पे सर्च कर लेते हैं. देयर इज एन नंबर ऑफ अदर साइट्स जो ऐसे रेलिवेंट पेपर्स को प्रिंट या बट वो सभी सेम नहीं होंगे. ठीक है. सो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ वेब 3.0 इम्प्लीकेशन फॉर ऑनलाइन लर्निंग, तो ये देखो लिंक springer.com साइट का आर्टिकल्स ओपन होने जा रहा है स्क्रीन पे. सो इट इज ओपन नाउ. सो ये यहाँ पे बताएगा कि इट्स अ पेड आर्टिकल
और अ फ्री आर्टिकल। अब बाय करना है तो यू हैव टू पे दिस मच अमाउंट विद टैक्स एवरीथिंग, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन, यू कैन सेंड अ मेल टू, ये आप इस सपोज करो दिस इज अ रॉबिन डी मॉरिस ने लिखा है, यू शुड क्लिक ऑन इट एंड आपको उसको डिटेल्स मिल जाएंगी। यू कैन साइट दिस आर्टिकल, आपने साइट करना है तो यू कैन डाउनलोड अ साइटेशन, आपको मेंशन करना पड़ेगा। इफ यू चूज, अगर आप किसी का कोई भी वर्ड उठाते हो, सपोज करो मैं ये एक सेंटेंस ले रहा हूँ, तो ये प्लेगरिज्म वर्ड आ जाता है। प्लेगरिज्म मीन्स मैंने किसी की बात को कॉपी करके एज इट इज लिख दिया। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड वो सॉफ्टवेयर चेक करता है कि मैंने किसी की बात को कॉपी किया या मैंने खुद लिखा। अब रिसर्च पेपर में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है उसके बारे में, उस रिसर्च पेपर में क्या चल रहा है और उसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या उसके बारे में बताया रखा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो रेफरेंसेस होते हैं। रेफरेंसेस कहाँ कहाँ से वो मटेरियल लिया गया है उसको साइट करने के लिए। फाइन। सो इस तरीके से हम देखते हैं, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तीसरा होता है कि हमने उस पेपर में लिखना क्या है, व्हाट इज द कंटेंट। सो कंटेंट लिखने से पहले हम उसको एक रफ ड्राफ्ट करते हैं, एक पेपर के ऊपर लिखते हैं कि हमने क्या काम करना है। सपोज करो आप ये कर रहे हो, सपोज करो आप कोई भी ले लो इसमें से, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया नहीं है तो यू शुड प्लस फ्री। जो फ्री वाले होंगे वो आपके सामने शो होंगे, इट्स अ पेड, इसमें से बहुत सारे पेड होते हैं जर्नल्स, बहुत सारे फ्री भी होते हैं। यू कैन सर्च लाइक एप्लीकेशन शेयरिंग इकोनॉमी। तो जब आप उस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लोगे उस पेपर को, तो वो आपके पास एक कंटेंट हो जाएगा। जैसे ये अभी एक चैप्टर है, फाइन। तो यहाँ पे उसने साइट एज बोला है कि मुझे साइट किया जाए, या मैं बाय कर रहा हूँ तो उसको बाय करने गए हैं। तो फर्स्ट डेट ऑफ, ये डीओआई होता है। आप जब भी डालोगे वो डायरेक्ट पेपर का लिंक देता है, पब्लिशर का नाम आता है, ऑनलाइन क्या है। ये आईएसबीएन और प्रिंट आईएसबीएन, ये दो तरह के होते हैं। अगर प्रिंटिंग होगा तो हार्ड कॉपी का ये नंबर होता है, ये रजिस्ट्रेशन आईडी कंपनी ने बाय किया होता है। ऑनलाइन ये उसका ऑनलाइन का लिंक दे रखा होता है। अब ये फर्स्ट कब हुआ, दैट इज ऑल्सो मेंशन, ठीक है जी। तो आपको वो मेंशन किया जाएगा कि आपको वो कब लिया है। नाउ आई विल ओपन अ बुक, फिर मैं आपको एक पेपर दिखाता हूँ, जस्ट 1 मिनट। सो दिस इज द ओनली वे थ्रू विच यू कैन इंस्टॉल। और आपको मैं दिखा देता हूँ एक और साइट, दैट इज schooler.google.com पे एक आप पेपर डाउनलोड करना है। यू शुड डाउनलोड अ पेपर। सो यू शुड राइट अ पीडीएफ प्लस, मान लीजिए आप पीडीएफ पीडीएफ प्लस, आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट लिखिए वेब 3.0, तो वो आपको उससे रिलेटेड वो ओपन कर देगा। जैसे रिसर्च गेट के ऊपर ये पेपर पड़ा हुआ है, यू शुड ओपन हियर। सो आप सीधा इस पे भी क्लिक कर सकते हैं डाउनलोडिंग के लिए। तो वो आपको उस पर्टिकुलर साइट पे ले जाएगा, जर्नल। और वहां से आप, जैसे ये जर्नल sagepub.com है, यहाँ पे आप जाएंगे। यहाँ से आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से पेपर डाउनलोड कर लेंगे। सो कुछ पेपर, बहुत सारे पेपर फ्री होते हैं, बहुत सारे पेड होते हैं, मैं जैसे आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो यू शुड सी हियर, ये कीवर्ड्स होते हैं हर एरिया। आप कोई पेपर लिखते हो तो उसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं। अब इस जिस पर्सन ने ये पेपर लिखा होगा, ये उनके नाम है, ये ऊपर आएंगे, ये डिटेल आएगी, ठीक है। उसके बाद ये एरिया आएगा, उन्होंने क्या क्या किया, कौन कौन से जर्नल से उन्होंने लिया है अपना डाटाबेस। तो सारा डाटाबेस आता है जिसको हम रेफरेंस वर्ड यूज कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपने इस चीज को डाउनलोड करना है, यू शुड क्लिक हियर। आप उसको क्लिक करके डाउनलोड के लिए भी जा सकते हो। ये वॉल्यूम नंबर और इशू कब वो पेपर प्रिंट हुआ, ये वो साइट हमें बताती है।
और जर्नल के बारे में और इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए हो तो हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जर्नल की इन्फो में अगर हम जाते हैं तो वो हमें बताता है कि ये किस किस चीज में प्रिंट है, कौन सा चीज सब्सक्राइब एंड ऑल दिस थिंग्स। इवन अगर हम कोई पेपर सबमिट करते हैं ऑनलाइन में तो वो यहाँ पे होता है। जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर क्या है और कितनी ईयर से वो चल रहा है, दैट इज ऑल्सो मेंशन इन इट। ठीक है। सो आप इन सब चीजों को कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो सो यू शुड ट्राई, आप कीजिए। आपको कोई दिक्कत लग रही हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे सपोज करो कोई आदमी कहता है कि मेरा तो जी ऑनलाइन पेपर प्रिंट हो चुका है, तो वी विल फाइंड ऑनलाइन आल्सो। सपोज करो मैं ही कह रहा हूँ मेरा पेपर प्रिंट हो चुका है, तो यू शुड राइट अ नेम। सो आप उसको गूगल पे सर्च कर सकते हो, ये स्कॉलर साइटेशंस। तो यहाँ पे वो डिटेल दे देगा कि कमल नयन शर्मा के नाम से कोई है पेपर या नहीं है। तो मान लो यहाँ पे वो कह रहा है कि डॉक्टर कमल नयन शर्मा है, या गूगल पे कमल नयन शर्मा एक है। ठीक है। सो या कमल नयन शर्मा है या कोई और नाम है, ये उसके पास आ गया। अब मैं मान लो यहाँ पे इसको हटा देता हूँ वर्ड को। तो रिसर्च पेपर वर्ड में डालता हूँ तो वो मुझे बताएगा कि स्कॉलरली आर्टिकल कमल नयन शर्मा का ये तीन उसको शो हो रहे हैं आर्टिकल, तो उसमें मैं कौन सा कह रहा हूँ। तो मैं पहले वाले पे क्लिक करता हूँ, जैसे ये वाला मेरा आर्टिकल है। सो यू कैन क्लिक। आप अब इसको क्लिक करने में वो ओपन हो जाएगा आर्टिकल। देखो पीडीएफ फाइल अपने आप ओपन होना स्टार्ट हो गई। तो कुछ जर्नल्स आपको फ्री अलाउ करते हैं, कुछ पेड करते हैं। ये जैसे आर्टिकल, ये देखो नाम आ गया मेरा कमल नयन शर्मा। ठीक है। आगे मेरे साथ जिन पेपर था, जैसे मेरे गाइड था उनका पेपर। तो ये अब्स्ट्रैक्ट हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, कब मैंने सबमिट किया, कब प्रिंट हुआ, क्या क्या उन्होंने रिविजन्स भेजी, वो सारा कुछ यहाँ मेंशन होता है। ठीक है। सो ये सारा डिटेल्स नीचे आ जाती है, जर्नल के बारे में भी आ जाता है। उसके बाद मैंने इस जर्नल में पेपर में क्या क्या लिखा, कितने मैंने रिसर्च पेपर्स को इसमें कोट किया है। जब मैं उसको कोट करता हूँ किसी रिसर्च पेपर को, देन आई हैव टू मेंशन अ नेम या उसका लिंक मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सपोज करो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि मान लो मैं किसी का लिख रहा हूँ, सपोज करो स्पेसिफिक, ये देखो ये नाम लिखा मैंने। ठीक है। अभी जब ये मैंने नाम लिखा तो साथ में मैंने लिखा है कहाँ से लिया मैंने, 2 नंबर जो होगा या 6 नंबर जो भी होगा, उसमें से सर्च करने पे वो मुझे मिल गया। अब ये कब प्रिंट हुआ था, 16 अगस्त। ये वॉल्यूम नंबर क्या था, इशू नंबर क्या था, ईयर कौन था, कौन सा जर्नल था। तो ऐसे हम पेपर डाउनलोड कर सकते हैं पढ़ने के लिए। तो जब हम डाउनलोड करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा एक साइटेशन स्कोर होता है। जो भी रिसर्च जर्नल लिखता है, जैसे मैं लिखता हूँ अभी, जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो google.scholar.com पे आप जब जाओगे, यू शुड मेंशन अ नेम ऑफ अ पर्सन। फाइन। तो मैं जैसे नाम लिखता हूँ किसी पर्सन का, तो अगर उसके नाम पे scholar.google.com, तो जब मैं जाऊंगा यहाँ पे तो उसको ओपन करूंगा, यहाँ पे मैं नाम लिखूंगा। सपोज करो मान लो मैं यहाँ पे किसी का नाम लिखता हूँ suppose, या मेरे साथ जो भी कोई पेपर है या मैं किसी का लिखता हूँ, तो हैव टू मेंशन अ नेम ऑफ द पर्सन। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो गूगल मुझे दिखाएगा कि जो मेरे साथ, जैसे हाँ ये देखिए, तो उसका प्रोफाइल पड़ा होगा उस पे गूगल के ऊपर। हम उसके प्रोफाइल पे जब क्लिक करते हैं तो गूगल हमें दिखाएगा डिटेल अबाउट द पेपर रिसर्च। जैसे ये डॉक्टर साहब डॉक्टर हैं, ये किस यूनिवर्सिटी से हैं, एंड डिटेल अबाउट द थिंग्स, कितनी साइटेशन है इनकी। ठीक है। तो जब आप क्लिक करते हो प्रोफाइल के ऊपर तो पूरी डिटेल नीचे यहाँ पे आएगी इनकी। अब इस एरिया में कौन कौन से पर्सन काम कर रहे हैं उन सब की डिटेल आ जाएगी।
किसकी कितनी साइटेशन है। जैसे ये है, ये पर्सन है फ्रॉम, so it has more than 9,455 citation। so इस तरीके से हम citations भी देख सकते हैं कि किसकी कितनी है और किसने कितना रिसर्च वर्क कर रखा है, तो वो सारी डिटेल्स आ जाती है। मान लो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे उनके पेपर्स किस किस में प्रिंट है, तो वो डिटेल सारी प्रिंट यहाँ पे आ जाती है। मान लो एक पेपर है, 5 है, 10 है, 20 है, कितने हैं, वो डिटेल आ जाती है। तो डॉक्टर साहब कैंसर के ऊपर काम कर रहे हैं जिन, अब आप किस रिसर्च जर्नल को फॉलो कर रहे हैं, आप उसका बारे में भी देख सकते हो, या आप किस पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक पर्सन को काम कर रहे हो, आप उनको देख लो। जैसे मैं इनको फॉलो करता हूँ, तो ये इनको फॉलो करते हुए मैं ये देख रहा हूँ, ये देखो ये सारी चीजें, तो इनके पेपर्स पढ़ रहा हूँ, आपको पेपर पढ़ने पे काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है। So if you have any confusion regarding research, how you can find a paper, first you can select your domain। at last domain में particular area select करो, particular area में जितना काम हो रखा है उन research related persons को select करो, उस person का specific काम किस field में है उसको सर्च करो, और उसमें से एक पेपर सर्च करो, वो आपका बेस पेपर तैयार हो जाए। फिर उसके बाद आपने वो सर्च वाला काम खत्म हो गया, अब आपने जो रिसर्च अब स्टार्ट होगी वो मेन रिसर्च स्टार्ट होगी। पहले आपने सर्च करना है कि आपने किस में काम करना है। डोमेन बहुत बड़ी है, लोग वर्ड बोलते हैं किसमें काम कर रहे हो, कंप्यूटर में। कंप्यूटर इज अ बिगेस्ट डोमेन। कंप्यूटर में किसमें काम कर रहे हो, हार्डवेयर में या सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर भी बहुत बड़ा नाम है, सॉफ्टवेयर में किसमें काम कर रहे हो या हार्डवेयर में किसमें कर रहे हो। तो एक पर्टिकुलर नाम जब आपके पास आए, मान लो एक पर्सन कहता है जी मैं रिसर्च कर रहा हूँ किस पे, इंडिया पे। इंडिया तो बहुत बड़ा भी, मैं कर रहा हूँ, अब स्टेट पे आ गया, पंजाब में कर रहा हूँ। पंजाब बहुत बड़ा है, स्टेट है। पंजाब में कहाँ पे कर रहे हो, जलंधर में, अमृतसर में, लुधियाना में, कहाँ पे। तो वो पर्टिकुलर आपका एक एरिया हो जाएगा जिसपे आपने काम करना है। सो इट डिपेंड कि आप उसको किस चीज के साथ कंपेयर करते हो। जब आप इस तरह अपना एक पर्टिकुलर एरिया डोमेन सेलेक्ट कर लेते हो, फिर आपकी रिसर्च का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपने किस में काम करना है वो सॉल्व हो जाता है। सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन सेंड मी अ मैसेज। थैंक यू।